Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, class 9, subject economics, chapter 2, people as resource. This is the second video of this chapter. Before this video, we discuss over the importance of human resource and the various sources of human capital or human resource formation. Once again, here we are going to describe the importance and role of human resource in the development of an economy and why human resource is more important than any other resource. Students, the development of the economy or a country, what depends upon two resources. In broad sense, there are only two resources in this world, and that is natural resources and another is human resources, and the development is the outcome of these two resources. Actually, the function between natural resource and human resource make an economy develop, and because of this, both resources, natural resources and human resource, are important for development of an economy. But human resource is more important than natural resources. The example is Japan and South Africa. As we know that Japan, where there is very little bit natural resources available, and the another country is South Africa, where the abundant quantity of natural resources available, and instead of that abundant quantity of natural resources, South Africa is still a backward country or underdeveloped country. And on the basis of human resources, the contribution of human resources make Japan the third largest economy of the world. That is the clear example that human resources is most important, more important than natural resources. Now, human capital or human resources were same thing. Whenever you all students, we all are human beings first, then we have to be convert ourselves into human capital or human resources through make a various types of investment in mostly in education, training, skill, health, information, awareness, and migration. As we know that population is the which is the major part of a country, and actually population is everything for a country because it consists the country forms. Population may be liability or assets, and indeed population, the population who lies between 0 to 14 years is liability, and because 0 to 14 years is not a working age, and it is the asset between 15 to 60 years, which is known as working population. इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन. तो वर्किंग पॉपुलेशन, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से 60 वर्ष वाले को, तो ये if an economy willing to get developed, then must convert the population between 15 to 60 years into assets through make them human capital and human resource. देखिए, अगर किसी चीज में इनपुट किया जाता है तो उसका जो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हमको सामने आता है, दैट सेम पर्सन कैन एबल टू प्रोवाइड ग्रेट प्रोडक्शन, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. ग्रीन रेवोल्यूशन में जब वही खेत जो पहले उत्पादन करता था और वही खेत जो उसके बाद 10 टाइम्स और कहीं कहीं तो 13 और 15 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद. ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमने HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी एंड यूज़ ऑफ टेक्निकल थिंग्स और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स के कारण ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हुआ. सेम प्रोसेस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ भी होता है, कि जब उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनमें हम इनपुटेड करते हैं बहुत तरह के,
तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो शॉर्ट में और ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स का एक ही मतलब है कि किसी भी तरह से मानव में उन गुणों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का सृजन करना जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ इनकम, और इनकम से ही हम जानते हैं कि लाइफ स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं। तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन अर्निंग्स, और अर्निंग्स जो है, उनके इनकम जो है, वो उनके जीवन स्तर का निर्धारण करते हैं। और अगर किसी देश में सारे लोगों के जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है, सारे ह्यूमन जो है उनकी प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी होगी, उनकी इनकम अच्छी होगी, तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, एंड ओवरऑल ए डेवलप लाइफ स्टैंडर्ड वाले कंट्री को हम डेवलप कंट्री कहते हैं, जैसे कि अमेरिका को हम इसलिए डेवलप कंट्री कहते हैं क्योंकि वहाँ मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है उनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, एक अच्छा जीवन जीते हैं वो, और इस आधार पर अमेरिका एक विकसित देश है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ पर बेटर हैं, और उस कैटेगरी में वो जो है वो डेवलप नेशन कहलाता है। तो क्या है ह्यूमन कैपिटल और रिसोर्सेज इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम, यानी ह्यूमन कैपिटल या रिसोर्स, मानव पूंजी या मानव संसाधन जो है वो स्टॉक ऑफ स्किल है, कौशल का उनमें भंडार है, एंड प्रोडक्टिव नॉलेज और उत्पादकीय ज्ञान उनमें होना चाहिए, और उसको हम इम्बॉडीड करते हैं, उनमें पिरोते हैं, इम्बॉडीड इन देम थ्रू। तो ये कोई बचपन से ही कोई जो मानव है वो बहुत ज़्यादा स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज वाला नहीं होता है, बट ग्रेजुअली थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, स्किल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन एंड अवेयरनेस, ये 7 एलिमेंट हैं जिसके द्वारा हम ह्यूमन बींग्स को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में। दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी निर्माण जो है वो मानव में शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कौशल से, प्रशिक्षण से, सूचना से, प्रवचन से और जागरूकता से, माइग्रेशन, पहले का लोग कहता था कि बेटा को पढ़ाइए या पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइए तो देश घुमाइए, ठीक है, तो वो माइग्रेशन है। माइग्रेशन से भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ का कोई किसान, कोई लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर, कृषक श्रमिक जो बैठा हुआ है गांव में, उसको कोई 50 रुपया देता है, 100 रुपया देता है, काम करवाता है, वो हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया, और वहाँ से श्री विधि और सुई विधि से धान की रोपनी वो सीख लिया कि कैसे किया जाता है धान की रोपनी श्री विधि और सुई विधि से। अब उसमें जाहिर सी बात है कि श्री विधि और सुई विधि से जो रोपनी का एक तरीका है जो नया खोजा गया है, उससे उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। अब वो लेबर जो है वो हरियाणा 6 महीना रह के आया और उसने ये सीख लिया, अब गांव में उसकी पूछ बढ़ गई, उसका इनकम बढ़ गया, अब लोग उसको 500-400 रुपया देकर अपने खेत में उस तरह से धान रोपने के लिए ले जाते हैं। तो माइग्रेशन इज ऑलवेज और ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बाय एनी मीन्स और बाय एनी मेथड्स, किसी भी तरीके से अगर आप में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका नॉलेज बढ़ जाता है, तो दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्स। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी देश में अगर इस आपका जो एसेट्स है, मान लीजिए भारत में जो 15 से 60 आयु वर्ग के लोग हैं वो करीब हैं 84 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे वर्किंग एज में है। इसलिए भारत को दुनिया का सबसे यंग कंट्री कहा जाता है। दुनिया के सबसे यंग कंट्री में भारत है, बिकॉज लगभग अप टू 60% पॉपुलेशन लाइज इन द वर्किंग एज ग्रुप। और इस अगर ये सारे पॉपुलेशन अगर प्रोडक्टिव हो जाए, इनफ प्रोडक्टिव हो जाए थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, स्किल एंड ट्रेनिंग से, तो फिर भारत को दुनिया की
पहली अर्थव्यवस्था होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रॉब्लम यह है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन की स्थिति ऐसी है कि हमारे इस ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन में 84 करोड़ जो पॉपुलेशन है, हमारा वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारा एसेट्स हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग अनस्किल्ड हैं, इलिटरेट हैं, अनइन्फॉर्म्ड हैं, अनअवेयर हैं, और इस कारण से अनट्रेंड हैं, और इस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है या नहीं के बराबर है, और फलता हुआ गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और अगर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इस तरह के लैकिंग से जूझ रहा है और गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो फिर पूरा देश का दर्जा जो है कैरेक्टराइज एज ए पुअर कंट्री और इलिटरेट कंट्री और अनएम्प्लॉयड कंट्री। तो इस तरह से हमको सबसे जो महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए वो उसके मानव संसाधन है, एंड वी मस्ट हैव टू बी डेवलप आवर ह्यूमन रिसोर्स in the form of human capital through investment in these 7 elements, and we have to be make our human resource human capital more productive. अब है कि क्यों ह्यूमन कैपिटल ही इतना ज़रूरी है, जबकि आज तो मशीन का युग है। कुछ लोग कहेंगे कि आज तो रोबोट का युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग आ गया, या फिर बहुत सारे टेक्नोलाइजेशन और मशीन हो रहे हैं। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जितने भी प्रोडक्टिव मैकेनिकल थिंग्स हैं, मशीन्स हैं, उनको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, या फिर कंप्यूटर है, दोज आर नोन एज फिजिकल कैपिटल, एंड देयर आर वास्ट differentiation. There is a major differentiation between human capital and physical capital. भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, human capital is the one of the capital which can integrate the factors of production, which can mobilize the factors of production, which can coordinate the factors of production and make production possible. ठीक है, हम ये बात मान सकते हैं कि फिजिकल कैपिटल इज enough powerful and they have more ability nowadays. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट को लेके बहुत सारे उनमें enough कैपेसिटी है, enough प्रोडक्टिविटी है, बट दे कांट कोऑर्डिनेट, दे कांट इंटीग्रेट, they can't mobilize the all other factors of production and make production possible. So human resource is the main living resource which can able to coordinate, integrate and mobilize the factors of production and make desired production, make production possible in a desired way. That's due to this human resource is more important than physical resource. एंड अदरवाइज और सबसे बड़ी बात है कि जो फिजिकल कैपिटल की हम बात करते हैं, वो फिजिकल कैपिटल भी तभी ज़्यादा बेटर होंगे, ज़्यादा बेटर से यूज़ होंगे जब हमारे ह्यूमन रिसोर्स उस तरह से कैपेबल होंगे। दे मस्ट हैव टू बी लिटरेट, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, टेक्निकल लिटरेसी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहिए। देन ओनली फिजिकल कैपिटल कैन बी यूज एब्सोल्युटली, एंड फिजिकल कैपिटल से हम डिज़ायर्ड रिजल्ट और गोल्स की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि फिजिकल कैपिटल इज के भरोसे हम पूरी तरह से नहीं रह सकते। फिजिकल कैपिटल हैज़ देयर लिमिटेशन, फिजिकल कैपिटल्स हैज़ देयर लिमिटेशन, एंड उस लिमिटेशन को बढ़ाने का काम उनके फिजिकल कैपिटल से डिजायर्ड रिजल्ट लेने का काम वो ह्यूमन रिसोर्सेज का है। इसलिए देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। The another question is economic activity and non-economic activities. Okay, overall activity is differentiated into two parts: economic activities and non-economic activities. Economic activities refers to that type of activity in which there is must monetary income or monetary earnings. जैसे एक माँ अपने बच्चों को नाश्ता बनाकर देती है, that is non-economic activity because it is a service of a mother towards his child.
एंड देयर वर नो मॉनेटरी इनकम फॉर दिस, देयर वाज सेटिस्फैक्शन और सर्विस है वो, तो वो सेवा है बच्चों का, माँ का बच्चों के प्रति। और लेकिन वही माँ अगर किसी कैंटीन के लिए या किसी होटल के लिए खाना बनाकर सप्लाई करती है तो that become economic activity, because in that process or that activity he get some monetary income. तो economic activity and non-economic activity will differentiate on the basis of only the monetary income. And if in any activity there is earnings of monetary income, that activity must be categorized as economic activity, and other all activities in which there were only satisfaction or which are made or done for service motive, those all activity were categorized as non-economic activities. Now the next topic is men and women differentiation on the basis of their productivity and income. देखिए भारत में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, तो जीडीपी दो चीज़ें हैं, हम बता रहे हैं आपको कि जीडीपी का जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन होता है उसमें हम महिलाओं का यानी घरेलू महिलाओं का, हम जो घरेलू महिलाएं सुबह में जैसे हम ऑफिस टाइम पे जाते हैं, तो हम ऑफिस टाइम पे जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ से कमा कर लाते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन आवर जीडीपी। लेकिन हम ऑफिस टाइम से जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल घरेलू महिलाओं का होता है। और वो महिलाएं जो सुबह उठ करके जल्दी से नाश्ता बना करके, खाना बना करके, घर को मैनेज करके हमको विदा करती हैं, और ताकि हम काम पर समय से पहुंच सके, टिफ़िन हमको देती हैं कि हम बीच में लंच कर सके, तो उनका इतना बड़ा रोल है। लेकिन इसके अलावा घर के मैनेजमेंट में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और उस कारण से हम निश्चिंत होकर काम कर पाते हैं। लेकिन उनके इस काम का चूँकि हम मॉनेटरी पेड नहीं करते हैं अपनी माँ को और अपने घर की महिलाओं को, तो इसलिए उनका ये वर्क, ये कंट्रीब्यूशन जो है ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है, और इसलिए उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, यानी उनको कमतर आंका जाता है। दूसरी बात है कि जो फिजिकल हमारा स्ट्रक्चर है मैन और वुमेन का, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वुमेन फिजिकली वीकर होती हैं देन मैन, और इसलिए उनको जो है डिफ्रेंशिएटेड वेज का शिकार होना पड़ता है, यानी उनको उनकी सैलरी और उनका इनकम जो होता है वो मैन की तुलना में कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि both are actually or indeed they are differentiated, they are equally strong, they are equally can contribute towards production activities and towards developmental process. But in India from ancient time both are differentiated on the various ways, and due to this there are some differentiation in income earnings of men and women, and that's only topic of policy formulation. In coming years I hope that government made such policies in which try to make a equality between men and women working and their earnings also. तो कॉजेज इन इंडिया यही है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से महिलाओं को घरेलू कामों के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, और चूँकि घरेलू कामों में कम ताकत की ज़रूरत होती है, कम फिजिकल स्ट्रांगनेस की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको हम शुरू से कमतर आके फिर इसलिए उनके मजदूरी में अगर घर की महिलाएं बाहर निकल के मजदूरी करती भी हैं तो वहाँ भी वो विज़न जो नज़रिया है उनके प्रति वो वही रहता है, और इसके कारण ये डिफ्रेंसिएशन है। दूसरा बात ये है कि एनवायरनमेंट वुमेन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में वर्किंग प्लेस के इन्वायरमेंट का और हमारे समाज के इन्वायरमेंट का और सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर महिलाएं जहां काम करती हैं, अगर वो अपने आप को वहाँ स्वतंत्र महसूस करें, फ्री महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, तो इंडीड वास्तव में उनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ
जो सामाजिक माहौल है, जो कार्यस्थल पर माहौल होते हैं, वो महिलाओं के अनुकूल नहीं होते हैं। इसलिए या तो अधिकतर महिलाएं हमारे काम पर जाती नहीं हैं, या जाती भी हैं तो फिर उनके साथ विभेदीकरण होता है। बहुत तरह के से उनके साथ विभेदीकृत व्यवहार किया जाता है, और जो भारत की एक समस्या है, और वास्तव में इन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। So I hope students that you all understand what is the natural resources and human resources, how both are responsible for the development of a nation, and what is the working population, and how population war became our asset through the investment in the elements or sources of human capital formation, and what is the difference between human capital and physical capital, economic activity and non-economic activity, and why there is differentiation between men and women on the basis of their productivity and income. In next video, we are going to describe the two major sources, education and health, and its features and status in Indian economy towards human capital formation. Till then, bye, take care, stay home, safe home.